Dear students, today we are going to discuss about very important topic, that is generation and conduction of the nerve impulse. We all know that nerves are spread in our body like a network, just like this. ये पूरी इस तरह से nerves जो हैं वो हमारे बॉडी में spread होती हैं. And if I show you with the help of a diagram, we all know that suppose here is a nerve fiber. It has end knobs here, axon and all these things. Then here is again, if I change the color, one more axon, then again dendrons are there, then one more, like that. Nerves जो हैं वो एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक ये सारी present होती हैं in your whole body. And you all know that the gap between the end knob of one neuron and the dendron of the another neuron is known as synapse. This gap is known as synapse. It is a very fine gap between the end knobs of one neuron and the dendrons of the other neuron. तो ये इसको हम synapse कहते हैं. तो now come to the main topic, that is generation and conduction of nerve impulse. तो कैसे nerve impulse travel होती है, because it is the atmosphere from कोई स्टिमुलस मिला न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स को, तो ये कैसे एक दूसरे को देते जाते हैं और कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल होती है, हाउ दिस मैसेज कंडक्ट्स इन योर होल बॉडी. तो हमको आज इसके बारे में पढ़ना है. एंड फॉर दैट वी हैव टू divide it into just 3 headings so that easily we can understand that what we are going to study today. So first is the polarized state of a nerve fiber, or you can say neuron. Second stage is depolarized, or you can say action potential, and repolarized. So first you have to remember 3 things: polarized stage or resting stage, next is action potential or depolarized stage, एंड लास्ट वन इज़ रीपोलराइज स्टेज. पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज. तो ये 3 स्टेजेस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस वन, दैट इज़ पोलराइज्ड नर्व फाइबर. क्या होता है, व्हाट इज़ पोलराइज्ड नर्व फाइबर, एंड what do you mean by resting potential? So I have already draw a diagram over here. If I enlarge it, you can see now, and with the help of this diagram I am going to explain you. So this is the neuron, a part of, or you can say a part of neuron I have drawn like that. ये neuron का एक portion है students जो कि मैंने बनाया है. And in this you can easily see that I have just given some charges outside, and this is actually basically I just wanted to tell you first that this is called neurolemma. न्यूरॉन की जो ये मैंने लाइन बनाई है ना, this is called neurolemma. This is neurolemma, and the अंदर जो ये साइटोप्लाज्म फील्ड है, that is called exoplasm, because it is axon. क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, सपोज दिस इज द नर्व फाइबर, तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया है, इस पोर्शन को मैंने इनलार्ज किया हुआ है, इस पोर्शन को, बिकॉज दिस इज़ नॉट साइटॉन, दिस इज़ नॉट डेंड्रॉन. तो दिस पोर्शन एक्सॉन पोर्शन है. तो एक्सॉन पोर्शन मीन्स जो कुछ भी अंदर फिल रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और यू कैन से बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंट इन टू द नर्व फाइबर, यू कैन कॉल देम एक्सोप्लाज्म. तो ये एक्सोप्लाज्म इसको मैं बोलूँगी, या न्यूरोप्लाज्म भी बोलूँगी, तो सेम चीज़ है, आप अंडरस्टैंड करेंगे. एंड ये एक्सॉन का मैंने थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इनलार्ज करके मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली कि ये क्या जो है प्रोसेस इसके अंदर चलता है. तो नाउ व्हेन इट इज़ इन द रेस्टिंग स्टेज, resting state, what happens is that it is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to the sodium ions. अब ये जो permeability है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द परमेबिलिटी. अभी जब रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्ट पोटेंशियल है, या ये सिंपली रेस्ट में है, देयर इज़ नो स्टिमुलस, देन व्हाट विल हैपन कि ये परमेबिलिटी जो है इसकी डिफरेंट होती है. एज आई टोल्ड यू दैट मोर परमेबल होती है ये पोटेशियम आयन के लिए. एंड किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस मेम्ब्रेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इट इज़ मोर परमेबल. दिस इज़ more permeable for potassium ion and less permeable for the sodium ion, and impermeable to negatively charged proteins of exoplasm. तो वो उनको बाहर नहीं जाने देती. एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया जाता है, इट इज़ डन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप. एक सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा है, व्हाट इज़ इट, suppose this is a cell, and this cell has, this is the membrane. So here are certain gates, or you can say certain pore like structures, which sometimes give permission to sodium to go inside or come outside. Sometimes they give permission to potassium to come inside and outside. That means these are those pores which allows the various kinds of ions to come inside or go outside. तो इनको हम बोल देते हैं पंप, बिकॉज पम्प्स का फंक्शन क्या होता है, चीज़ों को उठा के थ्रो करना. तो ये एक्टिव जो है वो
आप जैसे पढ़ते हैं ना कि एक्टिव एंड पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो इन दैट वे कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ 3 सोडियम आयंस को, एंड अंदर की तरफ इनसाइड 2 पोटेशियम आयन को पुश करते हैं, ज़बरदस्ती लाते हैं और ले जाने वाली बात हो गई ना। तो दैट इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पम्प, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ दीज 2 आयन सोडियम एंड पोटेशियम फोर्सफुली, तो उसको हमने नाम रख दिया सोडियम पोटेशियम पम्प। तो व्हाट हैपन्स इन दिस स्टेज, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल की ये जो कंडीशन है वो होती है, दैट मीन्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आयन्स जो है वो आपको पता है कि अंदर भी हैं, एक्सोप्लाज्म में भी हैं और आउटसाइड भी हैं। आउटसाइड के आयंस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, आयंस, तो क्योंकि सेल के बाहर हैं तो इसलिए उनको बोलते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम एंड इम्परमेबल फॉर सोडियम आयंस एंड द सर्टेन काइंड्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो है वो बिल्कुल इम्परमेबल होती है और सोडियम के लिए कम जो है वो होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इन एक्सोप्लाज्म व्हाट हैपेंस इज दैट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन वो अंदर होगा। देखिए मैंने पोटेशियम अंदर बहुत सारे बनाए हुए, दैट मीन्स पोटेशियम एंड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो सोडियम ज़्यादा है। तो सोडियम इज आउटसाइड मैक्सिमम एंड पोटेशियम इज इनसाइड मैक्सिमम, एंड ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो ये कॉन्सेंट्रेशन या ये सिचुएशन यू कैन से कि ये सिचुएशन जो है वो पाई जाती है इसके अंदर जब रेस्टिंग स्टेज में ये होता है। अगर मैं इसको इनलार्ज करके आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊँ, इनलार्ज नहीं, तो you can easily notice that outside there is a positive charge and inside there is a negative charge. You can easily see it here. Positive charge is outside the exoplasm, negative side inside the exoplasm, and more potassium inside and less potassium outside. More sodium is outside, less sodium is inside, and also negatively charged proteins are also present inside. तो ये सारे जो आयंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका हुआ है कम और ज़्यादा का, दे क्रिएट्स अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स अ डिफरेंस, जहाँ कहीं भी वर्ड आप ग्रेडियंट देखेंगे दैट मीन्स डिफरेंस। तो बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड, तो this differential permeability is maintained by the sodium potassium pump I told you, and also this kind of difference is known as resting potential you can say, or you can say gradient जो डेवलप हुआ इस तरह का, यानी कि आयंस का, ये रेस्टिंग टाइम में। सपोज सडनली कोई नर्व इम्पल्स, इसको कोई स्टिमुलस दे दिया जाता है, ठीक है, स्टिमुलस कोई भी स्टिमुलाई इसको मिला, किसी भी तरह का कोई टच का मिला या वॉट एवर, देन दिस परमेबिलिटी चेंज्ड, ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये परमेबिलिटी अभी चेंज हो जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज डीपोलराइज्ड कंडीशन और एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जैसे ही मतलब आपको कोई भी नर्व इम्पल्स मिलेगा, stimulus, that means I am just wanted to tell you that when a nerve impulse is stimulated, or you can say when a nerve fiber is stimulated by a impulse, then what will happen that ये कुछ भी एक्साइटिंग सी जो स्टेज है वो यहाँ पर हो जाएगी। सपोज यहाँ पर नर्व इम्पल्स इसको मिला इस जगह पर, तो दिस न्यूरॉन गेट्स एक्साइटेड, इट कम्स इनटू द एक्साइटेड स्टेट, और जब एक्साइटेड स्टेज में आए, और ये लोकल आता है, ये नहीं कि पूरे में एक्साइटमेंट आ गया, नो, इन द स्मॉल सर्किट के फॉर्म में, ये थोड़े थोड़े हिस्सों में। तो जिस जगह पर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पर अगर इसको स्टिमुलस मिला तो इसी जगह पर जो एक्साइटमेंट की स्टेज आएगी, एंड ड्यू टू द एक्साइटमेंट व्हाट विल हैपन दैट अगेन द परमेबिलिटी विल बी चेंज, परमेबिलिटी इसकी चेंज होगी अब, बिकॉज सोडियम चैनल्स और जो पोटेशियम चैनल्स हैं जिनके थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम अंदर बाहर आते जाते हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड। तो सोडियम चैनल्स बिकम एक्टिवेटेड, मीनिंग देयर बाय इज दैट ड्यू टू ओपनिंग of these channels, or you can say these pores, membrane becomes several times more permeable for sodium ion. Now अभी आपने किसके लिए कहा था, पोटेशियम के लिए more permeable थी, now it is going to be changed, now it is more permeable for sodium ion than potassium in comparison to potassium you can say, so that sodium ions rapidly diffuse from outside to inside, ये अंदर आने लगेंगे, मैंने एरो से दिखा रखे हैं आपको, they started coming inside, तो ये अंदर की तरफ आने लगेंगे, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स चार्ज, और जो केमिकल्स हैं उनका जो प्रोटीन्स हैं वो केमिकल्स हैं, तो ग्रेडियंट सो दैट इनसाइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, अब वो चेंज हो जाएगा। पहले मैंने ड्रॉ किया था बाहर पॉजिटिव, और आप यहाँ देख सकते हैं
outside is positive, inside is negative. Now this gradient will change and outside it will become negative and inside it will become पॉजिटिव. तो ये सोडियम और पोटेशियम की परमेबिलिटी जो चेंज हुई एक्सोलेमा की, जिसकी वजह से ये आना जाना इनका हुआ, और सोडियम आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्वियसली वो चेंज हुआ, तो सोडियम आयन्स जो हैं वो आउटसाइड जो है वो मैक्सिमम हो गए और इनसाइड जो है वो लेस हो गए, बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो ऑब्वियस है कि फिर उनकी पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का, सोडियम वो इंक्रीज़ हो जाएगा नियर अबाउट 20 टाइम्स, तो इंक्रीज़ ही हो जाता है. और दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज़ नोन एज डीपोलराइज्ड स्टेज, और यू कैन से इट इज़ अ डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर. इसको देख के ही आप बता सकते हो कि डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर है. एंड जो डीपोलराइजेशन है वो सर्किट्स में होता है. सर्किट्स के मीन्स छोटे छोटे हिस्सों में होता है. पहले यहाँ इधर पहले नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर अब इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो ये थोड़े थोड़े हिस्सों में ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े प्लेसेस पर ये होता जाता है. और दिस इज़ नोन एज एक्शन पोटेंशियल. ये एक वेव की तरह ट्रांसमिट करेगा इधर से इधर, ये पूरा इधर से इधर ये पूरा नर्व कंडक्शन हो जाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े हिस्सों में ये परमेबिलिटी चेंज होती है. सपोज़ यहाँ पर परमेबिलिटी चेंज होने की बात कर रही हूँ मैं, तो दे आर मोर परमेबल फॉर सोडियम फर्स्ट, देन ये अभी भी पोटेशियम के लिए ही परमेबल रहेगा, फिर ये सोडियम के लिए परमेबल जब यहाँ से हटेगा फिर ये यहाँ पर आएगा. तो मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में, थोड़े थोड़े हिस्सों में ये आगे की तरफ पोलैरिटी चेंज होती है. कम्प्लीटली पूरे नर्व में एक साथ नहीं चेंज होती है. जैसे यहाँ पर आप सोचो कि सडनली एकदम से जो है सारे के सारे सोडियम के लिए परमेबल हो जाएंगे. नो, पहले थोड़ा सा हिस्सा होगा सोडियम के लिए परमेबल, अभी ये पोटेशियम के लिए ही है पिछले की तरह, फिर ये अगेन होगा सोडियम के लिए, देन फिर ये अगेन. दैट मीन्स इन पार्ट्स ग्रेजुअली ये होते जाते हैं, इनके लिए परमेबिलिटी चेंज होती जाती है. और जब इसकी चेंज होगी तो फिर इसकी भी रिवर्स हो जाएगी. तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता है. सपोज इफ़ आई अगेन वांट टू टेल यू, सपोज दिस इज़ द नर्व फाइबर एंड इनिशियली आई टोल्ड यू कि इतना हिस्सा जो था जब डीपोलराइज्ड हुआ तो इट विल चेंज द पोलैरिटी, और अब ये सडनली ये परमेबल हो गया सोडियम के लिए. ठीक है, ये सोडियम के लिए परमेबल हुआ. ये वाला पहले की तरह पोटेशियम के लिए परमेबल था, ये वाला भी पहले की तरह ये भी चल रहा है. तो जब पोलैरिटी चेंज होगी तो पहले इसकी चेंज हुई, देन इसकी चेंज हुई, फिर अभी ये सोडियम के लिए परमेबल हुआ और ये फिर से पोटेशियम के लिए परमेबल हो जाएगा. दैट मीन्स ये रिवर्स चलता रहता है. तो द रिवर्स पोलैरिटी इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन, and this is also known as action potential, and it is developed due to the inflow of sodium ions. sodium ions के अंदर आने की वजह से ही ये जो है वो possible हो पाया. and this action potential travels as a wave of depolarization along the length of a nerve fiber in a particular direction, and it is known as nerve impulse conduction. इसी को हम क्या बोलते हैं, nerve impulse conduction बोलते हैं. तो ये चीज़ हो गई. देन कम टू द repolarization state, क्योंकि अब वापस उसी स्टेज में जाना है, क्योंकि काम तो हो गया, फंक्शन हो गया. नाउ दिस इज़ द अनदर थिंग. यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर बना रखा है, रीपोलराइजेशन ऑफ अ नर्व का मतलब क्या होता है, अगेन टू रिगेन दैट ओरिजिनल पोजीशन. तो आफ्टर द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल मीन्स एक बार एक्शन पोटेंशियल हो गया, जैसे अभी मैंने बताया आपको, डीपोलराइजेशन हो गया, दैट मीन्स परमेबिलिटी चेंज हो गई और मैसेज जो है वो पहुँच गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक नर्व से दूसरे नर्व पे. देन परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अगेन changes. That means permeability of membrane of to sodium decreases because sodium channels are now closed, वो बंद हो जाएंगे. while it become more permeable to potassium, पहले की तरह हो जाएगा, more permeable for potassium, less permeable for sodium, and it rapidly diffuse out from the cytoplasm to the extracellular fluid. ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होना जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे और पहले जैसा ही जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट है वो ये क्रिएट कर लेंगे. So it is due to the opening of various kinds of potassium channel and closing of sodium channel. These all things are going to be happen, and soon this part of membrane regains its original polarity and become electropositive on outside. बाहर पहले की तरफ ये हो गया, positive outside हो गया, negative inside हो गया, and this is called repolarization. तो जो रीपोलराइज्ड नर्व फाइबर है और जो पोलराइज्ड नर्व फाइबर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि दोनों तो एक जैसे हो गए, पहले भी बाहर पॉजिटिव था अभी भी है. तो डिफरेंस इज़ दैट कि जो ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन था वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा रह जाते हैं. भाई अब सारे के सारे सोडियम या पोटेशियम जो भी अंदर बाहर गए थे एग्जैक्टली वैसे ही तो नहीं अंदर आ जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा रह जाता है.
तो इसलिए वो आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। और ये रीपोलराइज नर्व फाइबर विच गेन्स द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस, इट अंडरगोज अ रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ फ्यू मिली सेकेंड्स, बहुत थोड़ा से फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ये थोड़ा सा रेस्ट करता है, एंड आफ्टर देन अगेन आयनिक और ये क्यों रेस्ट करता है? सो दैट इट कैन रीस्टोर द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा हो सके। जो भी कम ज़्यादा हैं, धीरे धीरे आयंस आ रहे हैं थ्रू द सोडियम पोटेशियम पम्प, तो वो उसको वापस रीगेन कर सके, उसको वो वापस ला सके, पहले जैसा बना सके। दैट मीन्स सोडियम बाहर ज़्यादा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा, ये सब जो करना है ना वो आराम से कर सके। इसे थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम उसको मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड, आप कह सकते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड कह सकते हो उसको, रेस्टिंग टाइम भी कह सकते हो उसका। और उसके बाद में फिर से अपना नर्व इम्पल्स जो स्टार्ट कर देता है। Suppose we are talking about the nerve impulse which travels in a नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर। अगर हम नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स की बात करें तो नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स में, यानी कि इसमें माइलिन शीथ नहीं है, व्हाट विल हैपन इन इट दैट नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय अ लोकल सर्किट्स, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। अभी भी मैंने आपको बताया है कि लोकल सर्किट्स, यहाँ यू कैन सी दीज आर द लोकल सर्किट्स, ये मैंने बना रखे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये मैंने बताया पीसेज में, पार्ट्स में द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, है ना। पूरे में, पूरे इसमें जो है नर्व फाइबर में सडनली पूरे में एकदम से ये चेंज नहीं होता है, पीसेज में। पहले इधर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव चल रहा है, इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ग्रेजुअली ये होना स्टार्ट होता है। एंड नर्व इम्पल्स जो है कंडक्ट इनटू द लोकल सर्किट्स इन विच डीपोलराइज्ड एरिया कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ नेक्स्ट एरिया। मतलब अगर ये डीपोलराइज, ये भी पोलराइज्ड है, दैट मीन्स रेस्टिंग है, तो ये अभी क्या होगा, डीपोलराइज होगा। जब ये डीपोलराइज हो जाएगा एरिया, तो फिर अभी वापस से ये वाले अगेन अगले वाले एरिया को हम रिपोलराइज करेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली चलता है। एंड ये होता कैसे, बिकॉज देयर इज़, यू कैन सी देयर इज़ अ चार्ज, ये सारा चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। यू कैन ईजिली सी दैट वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस देयर। तो ये चार्ज का काम होता है अट्रैक्ट करना। सपोज दिस इज़ द डीपोलराइज, बिकॉज ये तो स्टेशनरी और रेस्टिंग फेज हो गई। ये वाला कैसा एरिया हो गया, ये डीपोलराइज्ड एरिया हो गया, ये पोलराइज्ड एरिया है, ये फिर डीपोलराइज, ऐसे करके ये सर्किट्स में चल रहा होता है। तो व्हाट विल हैपन दैट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस negative charge present on outer surface of a depolarized area attracts the positive charge from the outer surface of next polarized area। ये वाले if I change the color, ये वाला एरिया इस वाले एरिया को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द डीपोलराइज्ड एरिया अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द नेक्स्ट पोलराइज्ड एरिया, वेयर एज positive charge present on the inner surface of depolarized area is attracted by the negative charge of the inner surface। तो ये ऐसे बन गए, एरो ऑपोजिट हो गए ना। और इनकी ही वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने रोक रखा है इन चार्जेस को ना स्टेशनरी में, तो ये कहीं भी इधर उधर नहीं जाने वाले। तो इन दिस वे जो डीपोलराइज एरिया, मतलब आप अब जब इस तरह से इन्होंने अपने आप को कर रखा है कंट्रोल, तो यू कैन से दैट द डीपोलराइज एरिया बिकम रीपोलराइज्ड एंड नेक्स्ट पोलराइज्ड एरिया बिकम डीपोलराइज्ड। अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। दैट नेगेटिव चार्ज यू कैन सी इन द डायग्राम, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर surface of depolarized area attract the positive charge from outer surface of next polarized area, whereas positive charge present on inner surface of depolarized area attracted by negative charge or inner side of next polarized area. So depolarized area become, that means depolarized area become repolarized and next polarized area become depolarized, and this process is repeated and the action potential flows onwards as a wave of depolarization and repolarization। ये चलता रहता, एक हिस्सा डीपोलराइज हुआ तो एक हिस्सा रीपोलराइज हुआ, एक हिस्सा रीपोलराइज हुआ तो अगला हिस्सा डीपोलराइज हुआ। इट मूव्स लाइक दैट। और इफ़ वी टॉक अबाउट द नर्व कंडक्शन इन दैट myelinated nerve fiber, so you have studied that in myelinated nerve fiber, suppose this is the neuron and this is axon, and here we made that this kind of structure that is called myelin sheath, and these places are called
वो nodes of Ranvier. So in this case, suppose I draw it little more, these are the nodes of Ranvier. So what will happen in the myelinated nerve fiber? Basically these are present in the cranial and spinal nerves. Cranial means the nerves which are present in your skull, and spinal तो आप जानते हैं spinal cord में होते हैं. तो medullary sheath, that means this one I am talking about. This I will change the color, black color I would like to take. ये जो medullary sheath है, it is impermeable to ions, so it cannot allow any ionic exchange. तो कोई भी आयंस को ये अंदर बाहर आने जाने नहीं देती, क्योंकि एक्सोप्लाज्म तो ये वाला है, ये तो एक्सोप्लाज्म है, आई एम टेकिंग ये वाला, ये तो एक्सोप्लाज्म है, और मेडुलरी शीथ जो है वो ये वाली है, तो ये तो किसी को अंदर आने जाने नहीं देती. तो इट प्रिवेंट्स द आयनिक एक्सचेंज एंड डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर अलॉन्ग द होल लेंथ. तो पूरे में तो नर्व जो कंडक्शन है वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो रोक रही है और ये बीच बीच में है. तो व्हाट विल हैपन? द आयनिक एक्सचेंज एंड डीपोलराइजेशन अकर्स ओनली एट द नोड्स ऑफ रेनवियर. दैट मीन्स केवल इन जगहों पर ही आयनिक एक्सचेंज जो है बच्चों को पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बीच में तो ये रोक रहे हैं ना, ये जो बने हुए हैं ये आपके माइलिन शीथ, दे आर इम्परमेबल फॉर आयनिक एक्सचेंज. तो दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ कि यहाँ से तुम जा भी लो, तो ये तो यहाँ पे जाने नहीं देंगे. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ग्रीन वाला ड्रॉ किया, तो ये इस गैप के बीच में ही केवल आयनिक एक्सचेंज हो सकते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर्स के थ्रू, विच हैव मोर नंबर ऑफ आयनिक चैनल्स एंड आयनिक पम्प्स. तो अब जब क्योंकि कम हो पा रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैनल्स, दैट मीन्स पोर्स होते हैं, आयनिक पम्प्स भी है, मतलब मैक्सिमम आयंस को वो जो है अंदर या बाहर लाना या ले जाना है वो कर पाते हैं. तो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस up to the node of Ranvier, it opens for sodium ions, so it generates a potential difference of sufficient strength. क्योंकि बहुत सारे एकदम से आते हैं, क्योंकि अब इनके पास बहुत टाइम या बहुत लंबा सा वो तो है नहीं न्यूरॉन पूरा, तो मैक्सिमम जितने निकल सकते हैं सोडियम आयन वो जो है वो जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार आते जाते हैं, एंड दे इनिशिएट्स अ नर्व इम्पल्स टू द नेक्स्ट नोड. यहाँ पर तो ये जंप करके हो रहा है ना, जंपिंग मैनर में हो रहा है. तो दैट्स वाई द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ इन अ जंपिंग मैनर फ्रॉम नोड टू नोड. ये नोड टू नोड जंप करके होगा, और तो कहीं होगा नहीं इनका आयनिक एक्सचेंज. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन. सॉल्ट मीन्स होता है, सॉल्टियर मीन्स होता है जंप करना, कूदना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी, SALTATORY. तो इट इज़ नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्टेटरी कंडक्शन. एंड इफ समबडी आस्क्स टू यू, दिस इज़ मोर रैपिड देन द नर्व इम्पल्स विच प्रोपगेट थ्रू द नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स. क्योंकि अगर नॉन मेडुलेटेड से पूछें तो मेडुलरी वाले जो नर्व फाइबर्स हैं इसमें जो नर्व कंडक्शन है इट इज़ फास्ट, 20 टाइम्स फास्ट होती है. एंड क्यों फास्ट होती है? बिकॉज ऑफ द जंपिंग मैनर. आप चल के जाओगे तो टाइम लगेगा, आप जंप करके जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे. तो इट इज़ ईजियर टू रिपोलराइज द नर्व फाइबर एंड रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये भी इसके लिए ईजी हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन का. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द nerve conduction, or you can say generation of the nerve impulse. And in next topic, here I just explained you the generation of the nerve impulse and conduction in the non-myelinated nerve fiber and myelinated nerve fiber. In next topic we will study about the nerve conduction through the synapse. So I hope you can understand it.